And welcome to the Pavilion. मैं हूं फ़खर आलम, आप देख रहे हैं Sports 10 Sports and the ARY's app. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023. And the news out of Ahmedabad is that the defending champions England have been humbled by the Kiwis, and what a start by the Kiwis. A lot of teams today must have gone on full alert to that Kiwi squad. What a great performance there. With me in the pavilion, I'm joined by four spectacular legends of the game of cricket, served the game and Pakistan really well. I've got Mr. Shoaib Malik, Misbah ul Haq, Moin Khan and the great Wasim Akram. Let's take a look at that match summary first up. आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर हम लेकर आ रहे हैं. ये है मैच की सूरत हाल. आज न्यूजीलैंड ने पहले टॉस जीता और टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया और पहले बैटिंग करते हुए इंग्लैंड ने 282 रन बनाए 9 विकेटों के नुकसान पर. That was really well. And then New Zealand chasing that 283 only for the loss of that one wicket in 36.2 overs. This definitely is going to alarm a lot of the teams. Now, look at that bowling card for England. Nothing impressive, but what would be worrying for England is that Mark Wood was taken at 11 runs and over in his 5 overs and remained wicketless. Only Sam Curran there picking up that one wicket right at the beginning, but just outstandingly classy cricket there by New Zealand. Let's open this discussion with my panelists here. And let me take this straight out to you, Wasim. What a performance there by New Zealand. Very impressive. Besting to England, hammering to England. World champions, one-sided game. I thought 280 kar liye, runs on the board will matter, but the way they batted, man, it was impressive. Especially जो उनका young opener है Ravindra. He in the beginning he looked much better than Conway, but Conway ने बाद में आके end में अभी मैंने score देखा तो अभी 120 था. 5-8 मिनट पहले मैच खत्म हुआ 152 or 121. I mean maybe there was a bit of dew factor, but whatever the reason, credit to New Zealand team. उनका captain नहीं खेला उसके बावजूद winning the game, the style they won. That's something really to be proud of the Kiwis. Yeah, that is true. Now, Shoaib, let me bring this to you. Now, Ish Sodhi wasn't there. Logie Ferguson was not there. Kane Williamson was not there. And yet, the Kiwi bowlers, पहले तो उन्होंने जिस खूबसूरत तरीके से इंग्लैंड को रिस्ट्रिक्ट किया, सैंटनर ने अपने 10 ओवर में आज एक भी बाउंड्री नहीं दी. You know, it picked up 2 wickets, and that I think says a lot of the discipline that they bowled with, and their fielding also just spectacular. I think the way Trent bowled went for almost 21 runs in his first 2 overs. So वो पैनिक नहीं किया उन्होंने और उन्होंने अच्छा होमवर्क किया हुआ था. और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इट्स अ लॉन्ग टूर्नामेंट. यहाँ पे वही टीम्स कामयाब होंगी जो जल्दी गिव अप नहीं करेंगी. बहुत अच्छा स्टार्ट लिया इंग्लैंड ने, लेकिन जो बॉलिंग अटैक था शुरू में वो अच्छा नहीं रहा. बहुत अच्छा स्टार्ट लिया इंग्लैंड ने, लेकिन विकेट भी मिली है. वो काइंड ऑफ वन ऑफ दोस पे विकेट लेग साइड जाए, बॉल लेग स्टंप के बाहर एज लगी, कैच हो गया. अनलकी था बैट्समैन मेरे ख्याल में, विल यंग. जी वो था. लेकिन इंग्लैंड जो था वो हमेशा से जो है ना, वो मुझे आज लगा कि वो अभी तक टूर्नामेंट में नहीं एंटर हुए. मुझे ऐसा लगा. I think it was kind of नहीं, लेकिन ये you're going to play against all the teams और आपको हर मैच बहुत important है, especially when you're playing against big teams, and 2 big teams played today. तो उसमें मुझे ये लगता है कि credit goes to New Zealanders. उन्होंने अपने nerves को जो अपने कंट्रोल में रखा, पैनिक नहीं किया उन्होंने. और ट्रेंट बोल्ट ने जो अपने कोटा पूरा किया, सो ही एंड अप गिविंग 48 रन्स. सोचेंगे पहले 2 ओवर्स में इतने रन्स दिए के बाद. और मैं ज़रूर कैप्टनसी को यहाँ पे जो है प्रेस करूँगा, जिस तरह उन्होंने जेम्स निशम और रविंद्र और ग्लेन फिलिप्स को यूज़ किया. ही यूटिलाइज्ड 20 overs between 3 bowlers, और एज आई सेड दे हैव गिवन अवे 149 रन्स. और बाकी जो 3 बॉलर्स थे उन्होंने 30 ओवर्स में 133 रन्स दिए. तो आई गेस क्रेडिट गोज टू देम, जो उनका बॉलिंग अटैक था और जो इंग्लैंड की
बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप था, उस मेरे हिसाब से 282 वो ऐसे था जैसे 200 रन थे। Ji, and as you said earlier, this might be a low-scoring game. Let me bring this to you, Misbah. Misbah, yesterday आपने एक point raise किया कि जी ये दो contrasting टीमें, एक बहुत modern, aggressive cricket खेलने वाली है और एक बहुत ज़्यादा disciplined, conventional cricket खेलने वाली है। और आज जो conventional cricket है वो एक दफ़ा फिर supersede की जो एक aggressive style है। What really do you think happened? Because I did not see New Zealand batters take any risks. They were बड़े डिसिप्लिन तरीके से उन्होंने खेला, जो बॉल मेरिट पे मारने वाली थी उसको मारा, जो पुश करने वाली थी। What do you make of this performance? आज तो ऐसे लगा जैसे अपोजिट स्टाइल में दोनों टीमें खेली हैं। इंग्लैंड नॉर्मली जिस तरह अटैकिंग क्रिकेट खेलती है वो राइट फ्रॉम द स्टार्ट अंडर प्रेशर हुए, विकेट गिरे, उसके बाद वो ऐसे ही लग रहा था जैसे वो रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं और वो पार्टनरशिप बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे। कहीं पे भी ऐसी सिचुएशन आई नहीं जैसे इंग्लैंड टेस्ट मैचेस में खेल रहा है कि डजेंट मैटर 2 आउट हैं 3 आउट है, ओवर में 2 छक्के मार रहे हैं, अपनी शॉटें खेल रहे हैं। कहीं पे भी वो गेम से आगे नहीं, वो न्यूजीलैंड से आगे नहीं हुए मैच में। जबकि न्यूजीलैंड को अगर देखें वो राइट इन द स्टाइल, इंग्लैंड स्टाइल, बड़े मज़े से वो बॉलिंग करते रहे कि ठीक है आप कर लो 300 तक, हमने एक स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप खिलाई है और हम चेस करेंगे। जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की है, टोटली जो इंग्लैंड की अप्रोच थी वैसी अप्रोच उनमें नज़र आई है कि उन्होंने किसी को, वुड को, इवन वोक्स जो भी आया, स्पिनर आदिल रशीद आए हैं, उनको भी उन्होंने कोई रिस्पेक्ट नहीं दी। चाहे पीछे बॉल हुआ है, चाहे आगे उन्होंने बॉल किया ऑफ स्टंप के बाहर, दे वर देयर और हर किस्म के शॉट्स खेले हैं। आई मीन लुक एट दैट 6, बिल्कुल उन्होंने जो भी बॉलर आया उसको अटैक किया, सेटल डाउन नहीं होने दिया और कहीं पे भी नहीं लगा इंग्लैंड के टॉप पे आएगी इनके अगेंस्ट। लुक एट दोस शॉट्स। Yes. बॉलिंग अटैक जो है वो आपको रन्स देगा। सुबह भी पहले भी बोला, मैंने पहले भी बोला कि उनका बॉलिंग अटैक ऐसा है वो आपको रन्स देगा। वो बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं कि हम ऐसा मैच खेलेंगे कि हमें मारोगे हम आपसे ज़्यादा मार के जीतेंगे, या अगर हम पहले बैटिंग करेंगे तो हम इतने रन्स लगाएंगे कि हमारा जो बॉलिंग अटैक है वो आप हमें जितना भी मार लो हमारे तक नहीं पहुँच सकते। वी टॉक अबाउट मार्क वुड 150, 147 consistent bowling करता kilometers an hour, that's quick. Yeah. But it depends on the opposition and the pitch too. अब उसका अपना करियर का रिकॉर्ड देखोगे, इज ऑलमोस्ट 39 रन्स पर उसकी एवरेज है पर विकेट। दैट्स वेरी एक्सपेंसिव एंड इन जनरल इंडिया में उसकी एवरेज उससे भी वर्स्ट हो जाती है। इट्स ओवर 42.57 रन्स पर विकेट। सो ये बॉलर ऐसा है कि ये वन ऑफ मैचेस में आपको इन विकेटों पे शायद चला सके, मगर वैसे बैक ऑफ अ लेंथ ऐसी शॉट करोगे, कट भी खाओगे, पुल भी खाओगे, जो उसको पड़ी आज मैच में मोइन। और उसकी ये वजह वसीम भाई कि उसे इंडिया में ज़्यादा रन्स इसलिए भी बनते हैं, या कोई भी पेस बॉलर होगा और वो इन टैक्टिक्स से बॉल करेगा कि मैं थोड़ा शॉर्ट ऑफ लेंथ करूँगा या मैं आगे करूँगा, उससे ये होता है कि आपको टाइम इनफ मिल जाता है जब आप शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग करने जाते हैं। ये देखें ये भी एक ऐसा बॉल था उसने सिर्फ गाइड किया है, पेस ले गई है, तो पेस यूज़ किया है तो वो जो है उनको रन्स बनते गए। लेकिन ये तब इफेक्टिव होंगे जब बैट्समैन वो मुंह उठा के शॉटें नहीं मारते, फिर इस स्पेस में वो वाले शॉट्स नहीं लगते हैं। तो आज कम रन्स थे जिसकी वजह से उन्होंने सिर्फ प्लेस किया गैप्स में, जिसकी वजह से। और इनको क्रेडिट ज़रूर देना चाहिए दोनों बैटर्स को कि जहां उसने शॉर्ट पिच बॉलिंग की उन्होंने पुल मारा, उन्होंने बॉल भी लगे एक दो बम्पर्स ऐसे गुजरे उनके पास, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, शॉर्ट बॉल करोगे तो हम उसको जो है मारेंगे। और ऐसा जो मुझे लगता है जो बाउंड्री है वो इतनी बड़ी नहीं है, तो जब इतनी पेस में बॉल आता है हाफ कनेक्शन भी विल क्लियर द बाउंड्री। 70 मीटर इज अ फेयर बाउंड्री, 70 मीटर। 70 मीटर ग्राउंड बहुत तेज है, फकर इतने तेज ग्राउंड, जरा सा गाइड करें आप गैप के अंदर, पुश जनरल पुश भी चौका आराम से मिल रहा था। जैसे बैट्स आ गए हैं, ये भी छोटी है मुझे लगता है गलत बता दिया, 70 यार्ड्स होंगे। एक जगह जहाँ पे अदील रशीद के ऊपर से बॉल गया है वो 61 मीटर थी एक विकेट टुवर्ड्स थर्ड मैन एंड फाइनल। एक वसीम, जो हमने जब इंग्लैंड के बॉलर्स को शुरू में देखा जब वो अटैक किया, तो शुरू में दे वर सर्चिंग फॉर दैट स्विंग,
और काफ़ी फुल उन्होंने थोड़ी सी ना बॉलिंग की भी है. उसके फ़ौरन बाद दे रियलाइज कि इट्स नॉट वर्किंग आउट, दे पुल्ड बैक. इट वाज टू, दे पुल्ड बैक. का record is very good in England, maybe in Australia, maybe in New Zealand, but it's a subcontinent. His average is again plus 41 है उसकी average. और इंडिया में तो बिल्कुल उसको काफ़ी 6 साल बाद वो इंडिया में वनडे खेल रहा है, तो इनको अब यहाँ तो रीस टॉपली को खिलाना पड़ेगा अगले मैच में. एंड होप एंड प्रे इंग्लैंड फॉर इंग्लैंड से कि जोफ्रा आर्चर फिट हो जाए, जो कि वो रिजर्व्स में आ रहा, वो ही इज़ इन रिजर्व्स बट ही इज़ नॉट फुली फिट एज वेल. सो दे नीड एक्स्ट्रा बॉलर इन देयर. वो 2 मीडियम पेसर एक पेस के इन विकेटों पे नहीं चलेंगे. बिल्कुल ऐसे ही है. मोइन, आपने you must have wondered, the keeper was there, the English side, and he's a very important member there. What would the keeper be telling the bowlers to do when you're getting trashing like this? I don't think so. उसके हाथ में कुछ नहीं, बिल्कुल बेबस नजर आ रहे थे और कोई भी इजीली आप तो कभी बेबस नहीं लगते. नहीं, आप तो बातें करके आप ट्राई तो करते हो एज अ प्रोफेशनल ऑफ कोर्स, बट जब आप अच्छी बॉलिंग कर रहे हो और उसके अगेंस्ट बहुत ही आपको जो काउंटर अटैक हो रहा हो आपके अगेंस्ट, और वो कामयाब हो रहे हो, उसमें तो मुश्किल हो जाता है, प्रेशर आता है. इसी तरह एक टीम अच्छा खेलती है, एक टीम बुरा खेलती है. आई थिंक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नो डाउट बिल्कुल दोनों की थी, बट जो डिफरेंस मुझे लगा वो ये है कि न्यूजीलैंड ने कहीं भी पार्टनरशिप बिल्ड नहीं होने दी. उन्होंने कॉन्स्टेंटली प्रेशर रखा है. विकेट जो जितने कैचेस निकले, जहाँ भी बॉल गई, कोशिश की है, फील्डर ने भी रिस्पॉन्ड किया. तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इसमें जो पार्टनरशिप्स मेन एक पूरे मैच में पार्टनरशिप लगी है, वो मैच जिता के ले गई. अदरवाइज कोई ऐसी पार्टनरशिप नहीं लगी. इंटरेस्टिंग मिसबा, सैम करन ने पहले 2 ओवर मेडन विकेट मेडन भी कराया और एक मेडन भी कराया. सो एट वन पॉइंट इट लुक लाइक बिल्कुल ही वाज राइट ऑन द डॉट, राइट ऑन द मनी. बट देन व्हाट हैपेंड फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स? बॉल रुक गया, मूव होना, स्विंग होना, पीछे खींचना पड़ा उनको. व्हाट डू यू थिंक वेंट ऑन देयर? देखिए, मैंने पहले भी कहा था स्टार्ट में कि एक नेचुरल एंगल बनता है लेफ्ट हैंड बॉलर का, आउट स्विंग होता है जगह से, और बीच में सीम भी हो रहा था, लग के अंदर भी आ रहा. अच्छे एरियाज़ में बॉल किया उन्होंने शुरू में, तो बेसिकली पैनिक नहीं हुए बैट्समैन, और रिस्पेक्ट दी है. अगर अच्छी जगह पे बॉल हो रहा है तो उन्होंने वो थोड़ा सा टाइम निकाला है, और साथ जैसे ही उनको मौका मिला उन्होंने काउंटर अटैक किया है. और जब वो थोड़ा सा मलिक बात हो रही थी हमारी, थोड़ा सा उन्होंने चलना शुरू किया उस पर, तो दैट्स व्हाट हैपन्स. मीडियम पेसर के पास फिर ऑप्शन कोई नहीं. आपकी पेस अगर 130 की है और बैट्समैन स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स यू, चार्जिंग टुवर्ड्स यू, देन यू हैव नो ऑप्शन. देन यू हैव टू पुल योर लेंथ, या आगे करेंगे, वो आपका जो एरिया है वो डिस्टर्ब होता है, आप चौके देना शुरू हो जाते हैं. थोड़ा बहुत स्विंग भी कम है. 282 में उन्होंने आगे थोड़ा सा टाइम लिया. यही अगर 350 होता तो फिर वो इतना टाइम नहीं लेते. और जो सैम करन है वो विकेट्स अर्ली ऑन भी ले सकते थे. वो इसलिए कि वो चार्ज करते, जो उन्होंने उनको 3rd या 4th ओवर में जाके शुरू किया. पहले उन्होंने देखा कि हम अर्ली ऑन इनको विकेट नहीं देते क्योंकि वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं. अगर ये टारगेट ज़्यादा होता तो डिफरेंट बॉल गेम हो सकती थी. बट आई गेस क्रेडिट शुड बी गिवन टू दीज 2 बैटर्स, कॉनवॉय और रविंद्र. उन्होंने स्ट्राइक रोटेशन भी रखी है, क्योंकि जब आप 152 की इनिंग्स खेलते हैं, 123 की इनिंग्स खेलते हैं, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आप छक्के मार रहे हैं, चौके मार रहे हैं तो आप पहुंच जाएंगे उस रन्स पे. स्ट्राइक रोटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जी सॉरी सर. इन एवरी डिपार्टमेंट आप फील्डिंग ले लो, बैटिंग ले लो, बॉलिंग ले लो, न्यूजीलैंड वर वे अहेड ऑफ इंग्लैंड इन दिस गेम. जस्ट आउटक्लास इन एवरी डिपार्टमेंट, आउटक्लास. मैं एक ये आपकी वाली शुएब के अगर ये 340 होते तो शायद वो शुरू से अटैक कर देते. मगर मैं जब ये देख रहा हूँ इनकी इनिंग का जो आखिर में है, दे स्टिल हैड 13.4 ओवर्स टू गो व्हेन दे फिनिश्ड 283. तो अगर ये 340 भी होते और वो इसी तरह का जरा स्टार्ट देते वॉचफुल किस्म का, तो इवन देन दे वुड हैव कॉट अप. एंड व्हाई विराट कोहली इज द ग्रेटेस्ट? सेल्फ बिलीव एज अ बैटर. वो पहले 10-15 बॉलें लेता है, लेकिन उसको पता है कि अगर मैं उस फेज से निकलूंगा तो मैं मैच को लेके जाऊंगा, मैं हर चीज़ कवर कर लूंगा. तो आई गेस ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है बैटर्स पे. बट 340 होता तो ये ज़रूर कोई ना कोई चांस अर्ली ऑन ज़रूर लेते. देखो ना, माइंडसेट की बात कर रहे हैं हम. अब कोई और टीम होती या सपोज अगर हमारी टीम भी होती तो हम ये स्कोर यही होता तो हम ये स्कोर 45 में 46 में उनमें करते, आराम से इजी हो जाते. बट उन्होंने नॉर्मल क्रिकेट खेली है, कोई रिस्क भी नहीं लिया, और 36.2 ओवर में रन रेट अपना ये स्कोर पूरा किया. और इससे रन रेट उनका
ठीक है अर्ली डेज टूर्नामेंट में है, पहला मैच है, बट इवेंचुअली अब इंग्लैंड को अब रन रेट ठीक करने के लिए बड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी इन द नेक्स्ट 8 गेम्स। बिल्कुल। एक आधे मैच से रन रेट नहीं बेहतर होगा ये। मैं क्विकली मिसवा टू यू, ये जो हमने बैटिंग देखी है, बल्कि मोइन यू शुड आल्सो चिप इनटू दिस, व्हाट आर द लेसन्स फॉर आवर ओपनर्स इन टॉप ऑर्डर टू लर्न फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इनिंग, बिकॉज देयर वाज नॉट मच रिस्क दैट दे टुक ऑन, they looked for the right ball to hit and all that. What should be the thing that Pakistani team should take away from the performance today? दो चीज़ें हैं, एक तो पॉजिटिव माइंडसेट आपका और दूसरा शॉट सिलेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंडिया के बैट्समैनों को देखें, एक्सप्लेन इट टू अस, टू द व्यूअर्स, एंड पॉजिटिव माइंडसेट तो एज अ कोच, एज अ कैप्टन आप कह दोगे आपको उसका मतलब क्या होता है? पॉजिटिव माइंडसेट का ये होता है कि जैसे हम कई दफ़ा ये सोचते हैं कि हल्का सा गेंद स्विंग शुरू हुआ है तो हम बिल्कुल ही कहते हैं कि बस ठीक है जी ठका ला दो, तो बिल्कुल हमने शॉर्ट शेल से निकल, नहीं ये नहीं था। उनको सीम हो रहा था, गेंद स्विंग हो रहा था, लेकिन जो उनके एरिया में 19-20 बॉल आया उन्होंने उसको चौका मारा। वो दिस इज़ हाउ यू बेसिकली पुट प्रेशर बैक ऑन द बॉलर। अगर अब बॉलर एक थोड़ा सा मिस करता है अपनी लाइन या लेंथ, उस बॉल को भी आप रिस्पेक्ट दे देते हैं, छोड़ देते हैं, रोक देते हैं, तो फिर तो बॉलर अगली बॉल आपको बिल्कुल और ज़्यादा वो प्रेशर बिल्ड करेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे प्रैक्टिस मैच में फ़खर जमान अच्छी उसके टाइम हुए चौके, फास्ट बॉलर्स को उसने मारे, उसके बाद जैसे ही ऑफ स्पिनर आया प्लेड अक्रॉस द लाइन। मतलब है कि ये शॉट सिलेक्शन जो मैं बात कर रहा था कि परसेंटेजेस आप एनालाइज करते हैं कि कौन सी शॉट मैं इसको विद द स्पिन सामने मारूं पूरे बल्ले से, चांस भी लेना है तो ये कि मैं सक्सेसफुल कितना होऊंगा इसमें। तो ये इमाम की अभी आप देख लें कि इमाम पिछले 2-3 मैचों में एक ही ये जो उसको थोड़ा सा मिडल ऑफ स्टंप से बॉल पड़ के लेंथ बॉल करीब से बाहर जा रहा है, वो उसको ज़बरदस्ती कट मारने जा रहा है और कॉट बिहाइंड हुआ है पिछले 2-3 मैचेस में। तो ये आपको देखना है कि यार कौन सा मेरा एरिया है और किस बॉल को मैंने अटैक करना है, तो फिर प्रेशर। बट मैं ये कह रहा था ना कि आई थिंक वी गॉट अ ग्रेट एग्जांपल फ्रॉम दीज टू बैटर्स टुडे कि इस 50 ओवर वर्ल्ड कप में अपनी इनिंग को पेस कैसे करना चाहिए। ऑफ कोर्स द माइंडसेट, द शॉट सिलेक्शन। देखिए हमारे अपने प्लेयर्स से भी सीखने की आपको बड़े, जो बाबर हुसैन आया है नीचे आया है, ठीक है उन्होंने नॉन रेगुलर बॉलर्स बाद में लगाए हैं, अर्ली ऑन मेन बॉलर्स भी आए हैं, तो ही वाज फ्लुएंट, उसने वो माइंडसेट पॉजिटिव के साथ आया, नॉर्मल क्रिकेटिंग शॉट्स मारे हैं उसने, बड़े ज़बरदस्त इनसाइड आउट मैक्सवेल को बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के शॉट्स मारे हैं, पुल शॉट। तो ये यही है कि आपने अटैक करना है बॉलर पे, नॉर्मल शॉटों में भी रन्स मिलेंगे इंडिया। दैट्स द बाबर आजम क्लास एज द बैट्समैन। जरा थोड़ा और डेप्थ में जा सकते हैं। देखिए इन्होंने 140 प्लस वाले को भी सिंगल बनाना आया, स्पिनर को भी इन्होंने सिंगल बनाए, तो मतलब इनका जो गेम है वो अगेंस्ट पेस और स्पिन बहुत तगड़ा गेम है। तो वही आपको बैटर्स फंसे कहीं नहीं है। एक टाइम ऐसे आया था कि अदील रशीद का बॉल टर्न हुआ है, उन्होंने 3 बॉल भी उसके ब्लॉक किए। एक गेम अवेयरनेस है कि इस वक्त अगर हमें सेट बैट्समैन को तंगी हो रही है तो वो नया आएगा उसको ज़्यादा होगी, राइट। सो मतलब इट्स अ टीम गेम। और मुझे ये लगता है कि इस लेवल की क्रिकेट जो है वो हमारे खेल सकते हैं। जैसे मिसबा भाई ने कहा कि बाबर खेलता है, 140 प्लस का बॉलर आए वो उसको बाउंड्री भी मारता है, सिंगल भी लेता है, स्पिनर आए वो भी करता है। लेकिन इस तरह के सेम हमें 3-4 चाहिए हमारे बैटिंग लाइन अप पे, अगर आपने बड़ी टीमों को मारना है। कितनी वैसे ये आइडियल बात हो कि हमारे पास 3-4 बाबर आजम हो, 1 2 3 4 करके कमाल हो जाए हमारे लिए। आई थिंक इट बी व्हाट अ वंडरफुल थिंग टू हैव। नॉर्मली हमारा टॉप ऑर्डर इमाम बहुत अच्छे, अब 50-50 की एवरेज ऐसे नहीं है उनकी, बहुत अच्छा खेलते हैं। थोड़ा सा वो मैं कह रहा हूँ कि प्रीवियस जो कुछ हुआ है पिछले कुछ 4-5 मैचों में उसकी वजह से प्रेशर बिल्ड हुआ है, वरना फ़खर और ये इमाम की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पार्टनरशिप्स हैं। वो कि एक आधी इनिंग में ये करें और उसके बाद जो फ्लो है वो वापस आ जाए। So a lot of lessons for all the teams, not just Pakistan team. I think all the other teams will be watching this game and thinking, the world champions, the defending champions, and the way the finalists of the last 2019 World Cup played, just a fantastic game of cricket. With that, we're going to take a break here. Now, when we come back, we will be taking your questions. It's hashtag Ask the Pavilion. You can send us your questions. आप देख रहे हैं A-Sports, 10 Sports, and the Airwise app. And we have more on the ICC World Cup 2023. Don't go away. Keep watching.
Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम. आप देख रहे हैं A Sports, 10 Sports and the ARY Zap app. Our continued coverage of the ICC Cricket Men's World Cup 2023. Sorry, please excuse me. I am in the Pavilion with the four greats of the game. Got Shoaib Malik, Misbah Haq, Moin Khan, and a very naughty Wasim Akram, and that's why I was laughing. बात कर रहे थे हम लोग अभी जो मैच खत्म हुआ है, the defending champions England humbled by New Zealand. What a great game of cricket by the New Zealanders. They must be very, very happy. Congratulations to all New Zealand fans around the world and to their team. And what an innings there by Ravindra as well. Now, interestingly, एक तरफ Conway थे, दूसरी तरफ Ravindra थे, and an exceptional innings. You were telling us about his name, Wasim, something very special about his name, that his parents have actually named him. Yeah, as उसके parents ने उसका Rachin is named after Sachin and Rahul Dravid. So, को मिला के, so imagine Rachin Ravindra, as in Sachin Tendulkar and Rahul Dravid put together. That's inspirational. Wellington के लिए खेलते हैं ये, बड़ी जबरदस्त इनकी डोमेस्टिक के अंदर भी बड़ी परफॉर्मेंस है. पाकिस्तान के खिलाफ वार्म अप मैच में 97 स्कोर किया था इन्होंने, और ये आज सिर्फ इसलिए खेले क्योंकि विलियमसन इंजर्ड थे. And that's when he got an opportunity. This is also an exceptional thing, Wasim. विलियमसन टीम में कैसे आएगा वापस? वापस करेंगे. वो पाकिस्तानी होता तो सोच रहा होता है. पाकिस्तानी होता तो ट्विटर पे सबसे पहले आए होते हमारे. इन्ना को लो ट्विटर छुड़ा लो प्लीज. X, you mean? X छुड़ा लो इन्ना को लो. टीम तो दूर की बात है, उन्होंने कप्तानी तो मिला देना थी. यार ये तो आप लोग ऐसे कहते हैं कि जैसे पता नहीं, इतना बुरा नहीं है हमारे हालात यार. सबसे नहीं पहले हम लोग तो बाहर से आए हैं, हमने तो देखे ही नहीं कुछ. X/social हम लोग बाहर से आए हैं. हाँ, क्यों रे, हम तो बाहर से हैं. ना हमें मिले हैं, ना हमें पता है हम क्या लोग हैं, हम पर्सनली कैसे हैं, और कमेंट करेंगे पर्सनल और बदतमीज से. मैं तो दिल करा नाम लूं. नहीं, छोड़ दे. खातून भी है उसमें. खैर छोड़े. फॉलोअर ने 2.5 और टॉक्सिक कह रही है हमें. चलें कोई नहीं. वो people have everybody has their own They opinion. but as long as you know a person, Yes. while watching on television, it's not us. Yeah, we have to say what we have to say. I mean, we would like So to talk about learn to anyway. listen. Yeah. Learn also to listen. Very important. ते मास्टर साहब इजाजत है रखे चला. Yes, talking about Rachin Ravindra. Now, let me put this question to all of you. चूंकि उसी पे बात हो रही थी. Now he comes in, he scores a big inning. And now what do you do with that? मतलब क्या होगा? विलियमसन फिट होंगे? How do you go about this now? क्योंकि ये भी नहीं हुआ कि आपने दूसरे बैट्समैनों को खेलते हुए देखा हो तो आप असेस करते हैं कि यार ये वाला थोड़ा Very simple. Really young drop होता है. नॉर्मली यही होता है. Normally, वो बेचारा यंग आउट हो गया उसका. वो एक ही नाम आया ज़हन में. मुझे ये लगता है कि वो 1-2 मैचेस और रेस्ट करेंगे. 100% होगा. मुझे ये लगता है ताकि वो 100% फिट हों, ताकि वो जो है टीम में वापस आ सके. मुझे लगता है 1-2 मैचेस वो और जो है अपने आप को देंगे ताकि वो फुली रिकवर करें. और मजे की बात और भी ये है कि रविंद्र एंड कॉनवे ये डोमेस्टिक टीम में भी साथ में विलिंगटन के लिए खेलते हैं. और ये 50 ओवर में इससे पहले 3 सेंचुरी कर चुका है. हाँ, रविंद्रा. Yes. He bowled decently as well today. I mean, it's like a good package to have, and the problem that they have is a good problem to have. Yeah. Huh? This is the kind of problem you want to have. मजे की बात है न्यूजीलैंड के आज टोटली हर चीज परफेक्टली उनके तरफ फेवर में जा रही थी. वो कभी कभी ऐसे टूर्नामेंट में मैचेस आते हैं, देखना ये है कि आगे कितनी कंटिन्यूटी होती है इस परफॉर्मेंस के अंदर. ये भी है, ये भी डिपेंड करता है. न्यूजीलैंड ऑल्दो की बहुत अच्छी टीम है, हर बड़े टूर्नामेंट में सेमीफाइनल फाइनल तक तो आती है. बट द वे दे स्टार्टेड अगेंस्ट नहीं, इंग्लैंड के खिलाफ बड़ी टीम थी. एंड पिछले वर्ल्ड कप में भी इनसे हारे हुए थे. और जो करंट फॉर्म है उसको देखते हुए हम सब ने 3 शोएब के अलावा तो प्रेडिक्ट बड़ा इजीली कर दिया था जी इंग्लैंड जीत जाएगा. बट द वे इंग्लैंड प्लेड, आई थिंक इंग्लैंड. मुझे फोन आया था कॉनवे और रविंद्र का सुबह. उन्होंने क्या न्यूजीलैंड, मैंने कहा अच्छा. मैं जो चीज़ कहना चाह रहा था कि आपने न्यूजीलैंड ने जो प्लान किया था, जिस किस्म की उन्होंने टीम बनाई थी, वो लकी रहे हैं एक तो टॉस पे भी, क्योंकि बैटिंग उन्होंने स्ट्रांग की थी. अगर न्यूजीलैंड भी सेकंड बॉलिंग कर रही होती तो इस बॉलिंग के साथ इंग्लैंड के अगेंस्ट चाहे वो जितना भी टोटल करते, डिफेंड करना आसान नहीं होता. बट वो जिस तरीके से उनका प्लान था, बड़ा ज़बरदस्त बॉलिंग चेंजेस, ये वो रिस्ट्रिक्ट कर लिया, देन दे वर कॉन्फिडेंट इनफ. उनकी बैटिंग लाइनअप अगर देखें तो 9 तक तो ऐसे बैट्समैन थे जिनको वो बैट्समैन गिनते हैं जी. ओनली 10th and 11th वो हेनरी, और वो भी ठीक बैटिंग कर लेता है. तो आई थिंक ओवरऑल एवरीथिंग गोज देयर वे in this game, and they played very well also. Yeah, this really makes
again, it makes them look really, really good. And now a very dangerous side. But this is also a wake-up call for England. I think England becomes more dangerous after this because they get this shocker of it. Probably they needed a wake-up call. They needed a couple of injuries to get right. And I suppose sometimes blessing it is guys कि आप favorite हो, defending champion हो, but उनके captain ने क्या defending doesn't matter to us. We are here for the new tournament. We want to win this tournament. So that could be a wake-up call for them. वसीम भाई, एक चीज़ अगर आप देखें, जितने previous World Cups हुए हैं, जितनी सीरीज हमने देखी है, T20 देखी है, जो मलिक ने भी पहले मेंशन किया है, इंग्लैंड कंफर्ट जोन से बाहर होती है जब भी वो डिफेंड करते हैं. Probably. उनकी अगर बैटिंग सेकंड है, डिफरेंट बॉल गेम है, जब भी उनको डिफेंड करना पड़ता है, क्योंकि वो जिस तरह मलिक कह रहा है कि वो डिफरेंट मैच खेलना चाहते हैं. वो बॉलिंग में थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज कर लेते हैं, बैटिंग स्ट्रांग रखते हैं. इंग्लैंड जब भी डिफेंड करेगी देन दे नीड टू गेट 400 ओवर 350 High scoring इससे कम बट डिफेंड नहीं कर सकती जो अब आज एक्सपोज हुई है इंग्लैंड की बॉलिंग. और ये मलिक ने बहुत पहले कर दिया था कि दिस इज द चैलेंज दैट दे हैव, बट दैट डजंट स्पीक वेरी हाईली ऑफ देयर बॉलिंग. मलिक, अगर वो 400 टीम बैटिंग लगाएगी तो फिर इंग्लैंड डिफेंड करेगी. मुझे ये लगता है कि जब बेन स्टोक्स वापस आएंगे उस कॉम्बिनेशन में, तो वो पूरे बॉलर भी हैं साथ में. But will he bowl though? I think he's just playing as a batter. I'm not so sure. Read it somewhere. I think now he has to bowl. Okay. तो उनको, क्योंकि कॉम्बिनेशन उनका ऐसा बन रहा है कि दे आर रिलाइंग अ लॉट ऑन देयर बैटिंग. सो बैटिंग अगर थोड़ी सी भी जिस दिन जाएगी, जो 20-30 रन्स का मार्जिन आएगा, तो फिर आपकी टीम जो है स्ट्रगल करती रहेगी. लेकिन ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे उनको उस चीज़ को, स्क्वाड उनका बहुत अच्छा है, लेकिन बॉलिंग डिपार्टमेंट मुझे लगता है कि उसमें एक आधा मेन बॉलर उनको और चाहिए. रीस टोपली जो है कैन बी गुड ऑप्शन. ही स्विंग्स द बॉल. तू स्टैट में देखे तो जो आदिल है उसकी भी एवरेज 100 की है इंडिया में. 100 की इंडिया विकेट टेकिंग पर विकेट. वसीम भाई, वो इसलिए आ जाती है, जैसे आपने मार्क वुड का भी बोला है, इंडिया में वो 40 प्लस पे चला जाता है वो, ठीक है. इसी तरह आदिल रशीद है, वो इसलिए है आदिल रशीद क्योंकि वो मैच ही आपसे ऐसा खेलते हैं कि हमें मारोगे हम आपसे ज्यादा मारेंगे. वेस्ट इंडीज जो 2 वर्ल्ड T20 जीता है ऊपर नीचे, वो इसी तरह जीता था. वो टॉस जीतते थे, दूसरी टीम को ला लेते थे अंदर, आप बैटिंग कर लो, 200 बनाओ, 250 बनाओ, हम लोग चेज कर लेंगे. तो इंग्लैंड उस अप्रोच से खेलता है. तो उनको, लेकिन मुझे ये लगता है कि इस टूर्नामेंट में उनको थोड़ा बॉलिंग की तरफ भी देखना पड़ेगा. दे हैव इनफ बैटर्स इन देयर साइड. So their next game is against Bangladesh. ओवरऑल जो माइंडसेट है ना उनका, वो टेस्ट क्रिकेट में भी देखें, एशेज के मैचेस देखें, फ्लैट पिच पे भी विन द टॉस बॉल, यानी टेस्ट मैच में भी वो चौथे इनिंग में चेस करने के लिए जाते हैं. तो वो उनका जो माइंड सेट है ना, वो ऐसा बना हुआ है, दे आर आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन व्हेन दे हैव टू बैट फर्स्ट. वो टारगेट सेट करना, वो कहीं ना कहीं उनके उसमें ये है कि हमारी बॉलिंग जो है वो उसकी वो स्ट्रेंथ नहीं है जो हमारी बैटिंग की है. You're watching The Pavilion. आपसे कुछ देर बाद #AskThePavilion, आपके सवालात और हमारे एक्सपर्ट्स के जवाबात. An interesting thing happened today. एक नया ODI रिकॉर्ड यहाँ पर जो है वो दर्ज हुआ है आज के मैच में, और वो हुआ है जब इंग्लैंड की टीम बैटिंग कर रही थी. आज पहली दफा ODI हिस्ट्री के अंदर किसी टीम के 11 सारे बैट्समैनों ने 10 या 10 से ज्यादा स्कोर जो है वो किया है, डबल फिगर्स में गए हैं. That's a very I would have thought this would have happened a long time ago, but this happened for the first time in ODI history. Incredible. Yep. So, but let's talk about the English batting. मैं अगर आपको strike rate सिखाऊं, Misbah, and you should take a look at it. So the biggest scores that came in: Joe Root 77, batted at 89.53% strike rate. Okay, Joss Butler 43. Well, Joss was at a higher score, 102. But the rest of them, small innings and big strike rates, but nothing special there. I mean, now that you look back, hindsight, it doesn't look anything special. वो भले मैंने बात की ना कि आज ऐसे लग रहा था कि न्यूजीलैंड इंग्लैंड वाली अप्रोच से रोल्स रिवर्स हुए थे बिल्कुल. और इंग्लैंड पहला मैच था, बिट रस्टी, थोड़ा सा ऊपर से धचका भी लग गया, आउट हो गया, नॉट श्योर कि कितना टोटल होगा. फिर वक्फे से जैसे ही वो थोड़ा पुश करने की कोशिश कर रहे थे, विकेट जा रही थी, तो ऐसे लगा है कि जैसे आप अभी तक फुली कंडीशन नहीं हुए और उन कंडीशंस को अभी समझ नहीं पाए, और इस वजह से आपकी जो बैटिंग में फ्लो था ना, वो रूट का थोड़ा सा नज़र आया है. बट वो ओवरऑल एज ए टीम जो इंग्लैंड का फ्लो होता है वो नहीं था. अब देखें कहीं पे भी इंग्लैंड के
बैटिंग लाइनअप में इतने कम स्ट्राइक रेट के 58 पे 89, ये उनके लिए कम स्ट्राइक रेट है। जी, मैं यही 64 कह रहा हूँ, yeah. नॉर्मली तो वो पार्टनरशिप्स एक आधी लगी है छोटी मोटी, की बड़ी पार्टनरशिप्स लगी है और विकेटें गिरती नहीं है। सो दैट्स व्हाट्स द मोइन वाज पॉइंटिंग दैट आउट कि वो पार्टनरशिप बिल्ड होने से पहले ही जो है वो क्रम्बल कर जाती थी। जी शोएब, एक चीज आप देखें कि जॉश बटलर से पहले तक लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन चलता आ रहा था, क्योंकि मोइन अली जॉश बटलर से पहले आए, तो राइटी लेफ्टी वाला कॉम्बिनेशन जो था वो चला रहे थे। मुझे ये लगता है कि T20 क्रिकेट में ठीक है, लेकिन ODI क्रिकेट में स्टिल अगर दो राइटी भी खेल रहे हो, और हम लोगों ने देखा कि जो रूट और जॉश बटलर की पार्टनरशिप लगी, जब Right. विकेट्स गई तो उनकी पार्टनरशिप लगी। सो बैटर चाहे राइटी हो चाहे लेफ्टी हो, ये नहीं देखना चाहिए कि यार हम इस कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे। जो इन फॉर्म है या जो अच्छा खेलते हैं, जिन्होंने रिसेंट पास्ट में अच्छी फॉर्म में परफॉर्मेंसेस करते आ रहे हैं, स्टिक टू दैट, उसे नहीं आप चेंज करें। जो मुझे ये लगा कि उन्होंने छोटी छोटी चेंजेस की जिसकी वजह से उन्होंने स्ट्रगल किया। आज बॉलिंग डिपार्टमेंट उनका है, लेकिन बैटिंग में मुझे ये लगता है कि उनको जो बैटर्स उनके खेलते हुए आ रहे थे, उनको सेम फॉर्मेशन से आना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। न्यूजीलैंड में देख लें इतनी बड़ी पार्टनरशिप, दोनों लेफ्ट हैंडर्स खेल रहे थे, इतनी बड़ी पार्टनरशिप 272 रन। So basically negate करता है the idea of a left right combination, maybe 20 overs it works better, but Well, here it it doesn't really depends. matter. It depends Yes? on You need to give the conditions. rule. Yeah, they- अनलेस डिफिकल्ट कंडीशंस है। अब अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर लगा हुआ है, बॉल टर्न हो रहा है, तो आप लेफ्टी को भेज सकते हैं। All right, okay. सेम गोल्स फॉर अगर ऑफ स्पिनर लगा हुआ है तो आप राइटी को भेज सकते हैं। तो ऐसे वो उस केस में सही है, बट अगर आप जैसा आज भेज का भी पिच दें था, तो आगे आप देखें उन्होंने ग्लेन फिलिप को फौरन लगा दिया मोइन के लिए, as you said, and उससे आते साथ ही was a part-time bowler came and immediately dismissed मोइन. he got he got root as well. Yeah, settled batsman. शोएब ने कहा है ना कि 3 बॉलर्स ने 20 ओवरों में पार्ट टाइम काइंड ऑफ बॉलर्स। या Yeah, that is a good point कि ने उन्होंने ग्लेन अपना पूरा फिलिप्स एफर्ट और कप्तान ने उनको मैनेज भी बड़े अच्छे तरीके बहुत से अच्छे से किया। All right, with that, we're going to take a break right here on the Pavilion. You are watching A Sports, 10 Sports, and the ARY Zap app. Continued coverage of the ICC World Cup 2023. When we come back, we will be talking more about the game in hand, and we will be taking your questions at hashtag Ask the Pavilion. Don't go away. Keep watching. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं A Sports, 10 Sports and the ARY Zap app. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023. News out of Ahmedabad. New Zealand has defeated the defending champions England, and boy have they defeated them by a huge big margin. But congratulations to Kiwi fans. With me in the Pavilion, I've got the 4 legends, the outstanding 4 gentlemen here. We've got Shoaib Malik, Misbah-ul Haq, Moin Khan and Wasim Akram. Break पे मोइन खान बड़ी अच्छी सजेशंस दे रहे थे कि हमें किन किन चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू करनी चाहिए, मगर मेरा ख्याल है नहीं, कंटेंट के लिए अगर कंटेंट नहीं बचा तो कुछ भी कर सकते हैं। कंटेंट के लिए मैंने आपकी बहुत सारी चीजें जमा करनी है अपने फोन पे, उसकी फिक्र नहीं करें। कंटेंट की कमी नहीं होगी हमारे पास। मोइन, यू हैव नथिंग टू वरी अबाउट ऑन द कंटेंट फ्रंट। एक दो ये जो रिवर्स स्वीप टाइप के जो शॉट्स हैं मिसबा, ये तो हर जगह पे, ये T20 में भी यही खेलते हैं, टेस्ट मैच में भी खेल देते हैं अब तो इंग्लैंड की टीम। प्रैक्टिस करते होंगे, और प्लस उनको ये डर नहीं है कि अगर हम इस शॉट पे आउट हो जाते हैं तो हमारे अपने ही लोग सोशल मीडिया पे जाके हमें बदतमीजी नहीं करेंगे। क्रिटिसाइज करें, डिसअपॉइंट हो, बट पर्सनल ना हो, बदतमीजी ना करें, तो एक फेयर होता है। हमारे बच्चों पे फेयर है ये लड़कों पे कि खुदा ना खास्ता हम करते होंगे प्रैक्टिस को, नेट्स में करते होंगे, कोई आउट हो जाए तो पीछे छाड़ देनी पीछे। ये जरा देखें दोबारा, आप ये देखें कि ये बड़ा जबरदस्त टेस्ट मैच में भी करता है ये। लुक एट दिस, खैर ये तो लगा नहीं उनसे, बट वेरी नाइसली एट दिस वन, और उस पे आउट भी हुआ है। इसकी क्या ड्रिल क्या होती है? इसके लिए कोई ड्रिल है? इज देयर अ ड्रिल, इज अ पर्टिकुलर प्रैक्टिस? ऑब्वियसली आप जिस लेंथ को वो फास्ट बॉलर को अगर ये रैम्प शॉट रिवर्स मार रहा है छक्के टेस्ट मैच में भी, तो नॉर्मली होता क्या है कि आप बॉलिंग मशीन सेट कर लेते हैं उस लेंथ पे, और आप उसको कम से कम 100-150 बॉल। We've got a cricket bat right over there. Could you give us a little demonstration on what kind of drill should the young people be practicing if they want to practice this shot? Of course. Of course, we'd love to do it. Please do. और मास्टर क्लास में तो आप वैसे भी कर चुके हैं। जी जी बिल्कुल आप कर चुके हैं। वो सामने मारते हुए उसने दिखाया है,
तो वो आपको नजर नहीं आ रहा कि कैसे खेल रहे हो? मैंने भी वही बताना है कि अच्छा, ऐसे ठीक है, खेल चले। मुझे पता है, मुझे पता है आप थके हुए हैं, आज आपने जिम की है बहुत शदीद। कोचिंग मैनुअल है वसीम भाई। देखें, मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। जो भी आप रैम शॉट खेलते हैं, ये शॉट मोइन भाई खेलते थे, फास्ट बॉलर के यॉर्कर्स को ये स्लॉग स्वीप अंदर की तरफ। तो जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जस्ट लाइक ड्राइव, आप करते क्या है, आप कई दफ़ा ना नज़र हटा लेते हैं बॉल से। एक तो एक्सटेंशन ऑफ योर आर्म्स जहाँ पे भी बॉल है, लेकिन आपने बल्ले में बॉल को लगते हुए देखना है। ये नहीं करना नहीं लगेगी, ये नहीं लगेगी, नहीं। आपने जब कनेक्ट करना तो पूरा मोइन भाई बैठे हुए ये बताएंगे कि पूरा आपने देखना है उसको और बल्ले में बॉल को लेना है। तो ये आप उसको देखेंगे, वो पोजीशन में आता है और उसके बाद पूरी उसकी आई होती है और प्रैक्टिस की होती है। जैसे उसको लेंथ नज़र आती है उसको एडजस्ट करके सिर्फ ग्लाइड करता है पीछे की तरफ। I didn't notice one thing, but Wasim just asked you this, क्या ग्रिप स्विच होती है? ग्रिप नॉर्मली अगर ग्रिप तभी चेंज आप करते हैं जब आपने उसको जोर से मारना होता है। जब आपने बॉलर की पेस यूज करनी होती no need to है change तो grip. आप ऐसे, मैं अगर खड़ा हूँ तो मैंने आराम से उसको टैप कर देना बॉलर मैंने भी ना एंड 90s में मैंने सोचा कि यार वो मैं पूरी तो नहीं तब कोई मारता था। मैंने एक दो बैटर्स को देखा कि वो हल्का सा ऐसे करके ना उल्टा, अगर मैं लेफ्टी हूँ तो मैं ऐसे ही करता था। तो मैं, हमारा एक प्रैक्टिस मैच हुआ था आपस में ही, आई थिंक गुजरांवाला। सो मैंने कोई 30 से किया, उसमें तो सकलैन आया आखिरी ओवर करने। तो मैंने कहा चलो मैं नेट में तो हल्का हल्का हेलमेट पहना होता कर लो, तो मैंने हेलमेट नहीं था पहना उसमें। एज यूजुअल अक्लमंद तो बड़ा हूँ मैं। अब मैंने, उसने सकी ने तेज बॉल किया, मैंने हल्का ऐसे किया, आज बजी सीधा थे तो 6 टांके 6 टांके उस समय मैं कहता तौबा मेरी तौबा सीधा। If I'm not mistaken, the first time I saw somebody reverse sweeping was Mike Gatting. Mike Gatting में करते थे reverse sweep। कोई ज़बरदस्त सिक्सेस थे उसके अंदर मोइन थे आज के मैच के अंदर, स्पेशली फ्रॉम द कीवीज। बहुत माशाल्लाह, बहुत मजा आया। मुझे लगता है इंग्लैंड ने ज्यादा छक्के 25 साल गिराते आए हैं। What is this? माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया। नजर आया, देखा है सबने यार, इतने जबरदस्त क्वेश्चन किया तभी तो मैंने बोला माशाल्लाह। आपने माशाल्लाह बोला हो, कह रहे 25 साल की रहते हैं। और माशाल्लाह कहने की बात नहीं थी यार मैं आपको बता रहा था, देखा नहीं, जब कंटेंट खत्म हो जाता है ना, बात करते हैं कॉनवे की फैमिली की बात करें। भाई सुने, देखिए आप रविंद्र की फैमिली की बात करें। फैमिली की बात, क्रिकेट की बात करने की ला दे मेरा नाम, ला दे मेरा नाम, तू दस फिर किधर ना लाइए, ठीक है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द ड्रॉप्ड कैचेस टुडे मोइन। ये जो 2 कैचेस आज छूटे हैं, जिसके बारे में आप पहले भी हमें बता रहे थे। आप कौन सा मैच देख रहे थे? कौन सा मैच देख रहे थे? ये मैंने अभी इनको चेक किया कि ये जाग रहे हैं कि नहीं जाग रहे हैं। ये मैंने क्रिएट किया था। मैंने कहा जो लोग सो रहे थे उनको बता दे। इसीलिए सवेरे 8 बजे उठ के आया बाबा। All right, and yes, the world is going to be talking about that boy Ravindra with that outstanding innings. अब से कुछ लम्हों बाद hashtag Ask the Pavilion का बाकायदगी से सिलसिला हम शुरू करते हैं। ये आपकी टेलीविजन की स्क्रीन के ऊपर आ रहा है hashtag. That's the hashtag you need to use. It's Ask the Pavilion, and we're going to take all your questions and comments and try to answer them as we go. मोइन तैयार है ना? बिल्कुल। या आपको पहले से बता दूं मैं कि रेडी मैंने आज क्वेश्चन जी नहीं, मैं आपको वक्फा दे रहा हूं ताकि आप तैयार हो जाएं। Okay. All right. So we're going to take a break here in the pavilion so that Moin Khan can prepare himself for what's going to come next in the show. And we'll see you on the other side of the pavilion, on the other side of the break. Welcome back to the pavilion. मैं हूं फ़ख्र आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 10 स्पोर्ट्स एंड द एयरवाइज ऐप है। कंटिन्यूड कवरेज ऑफ द आईसीसी वर्ल्ड कप 2023। अहमदाबाद से खबर यह है कि न्यूजीलैंड ने डिफेंडिंग चैंपियंस इंग्लैंड को पहला मैच जो है हरा दिया और बड़े कन्विंसिंग तरीके से हराया। उसके बारे में हम बात कर रहे थे, बट अब वक्त हुआ है आप लोगों के सवालात का। एंड वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट हैव कम इन विद द हैशटैग आस्क द पवेलियन ऑन एक्स। सो लेट मी स्टार्ट ऑफ विद, बट पहला सवाल चूंकि मैं अभी उसको स्क्रॉल कर रहा था ब्रेक के अंदर और वो मुझे मिल नहीं रहा था, सो आई डू apologize. जिन साहब का भी सवाल था, I wish I could take your name and then ask the question, but I'm going to bring that question out for discussion right now to our panelists. और उनका सवाल जो था वो ये था कि why only Kookaburra ball?
white ball. Why not Duke? Why not any other brand? Why do we insist कि इन्हीं का ball होना चाहिए? इंडियन जो अपना SG यूज करते SG का ball. Why not any वो other भी ball? वाइट गेंद बना सकते हैं. ड्यूक भी बनाया. ड्यूक 99 वर्ल्ड कप में ड्यूक लगा हमने यूज़ किया इंग्लैंड में. Right. शारजा में भी कई दफ़ा हमने इंग्लैंड ड्यूक बॉल यूज़ किया. वो थोड़ा हार्ड रहता है, उसकी सीम थोड़ी सी ऊंची होती है और फास्ट बॉल उसको थोड़ा स्पेशली ऐसे पिचेस पे बड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज मिल जाता है. आई सपोज आई थिंक इट्स प्रॉपरली मोनोपोली बाय कोकोबोरा. दुनिया में आप जहाँ देखें, या अभी तक वसीम भाई शायद नेशंस ने कंप्लेन ही नहीं की अगेंस्ट दिस कि भाई इसका प्रॉपर क्राइटेरिया क्या है. आई डोंट नो, मुझे खुद नहीं पता अदर इस कोई क्राइटेरिया इसका है कि नहीं, बट मुझे लगता है ऐसा कि आईसीसी में यकीनन इस बॉल का कोई ना कोई क्राइटेरिया होगा. इसी वजह से अभी तक जितने भी कंट्रीज हैं उन्होंने कभी किसी ने ऑफिशियली कोई कंप्लेन नहीं किया अगेंस्ट दिस बॉल. नहीं आई सपोज. मुझे लगता है वैसे कि क्योंकि अब कमर्शियल बहुत ज़्यादा है क्रिकेट और ऑब्वियसली इट्स अ बैट्समैन गेम. वाइट बॉल क्रिकेट में आप इसको अट्रैक्ट करने के लिए बाउंड्रीज, मोर रन्स, मोर सिक्सेस, छोटी बाउंड्री, फ्लैट पिचेस. तो कोकोबरा जो है वो मशीन स्टिच बॉल है और अंदर इसकी सिलाई है, मोर फ्रेंडली फॉर द बैट्समैन. दैट्स व्हाई आई थिंक एवरीबॉडी इज जस्ट थिंकिंग कि ठीक है, जस्ट कंटिन्यू विद दैट, क्योंकि मोर रन्स यू वांट टू सी मोर रन्स. I understand more Bit runs, harsh but you with the think bowlers, you also obviously. want, as a viewer, as a cricket lover, it's between fair battle between bat and a ball. Bowlers के पास भी उतने ही चांस हो जितना बैटर के पास I mean, है it's a flat deck competition, पे. right? It's a game, so everybody should have a Fair fair chance. play, fair chance. Yeah. लेकिन उसमें लेकिन आप चेंज भी कर सकते हैं ना. ठीक है, वो बैटर फ्रेंडली बॉल है तो फील्डर भी अंदर रहता है या उसे बाहर ले जाएं. सो दिस कैन बी अ लॉन्ग डिबेट. लेकिन मुझे ये लगता है कि कोकोबोरा बॉल जो है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द ब्रांड्स, ये ज़्यादा देर तक वो रहता है, कॉम्पैक्ट रहता है, सस्टेन करता है. ये haven't tried किया था. 99 में लास्ट हमने ट्राई किया था. मेरा जब जो कि डेब्यू हुआ था perfect ड्यूक वो. था उस वक्त. ड्यूक, हाँ उस वक्त था. लेकिन कोकोबोरा बॉल मैंने देखा कि ये लॉन्ग लास्टिंग है. I think we're going to ask our team to do some research and find out what really is going on. How is the ball selected? I do understand जो मिसबा ने लॉजिक पेश किया कि they want it to be more, friendly, more runs and Whenever we also play with that, जो कि आपकी हैंड स्टिच बॉल है जिसकी सीम ज़्यादा बाहर है, जब भी आप उससे खेलते हैं, नॉर्मली हम क्लब क्रिकेट में या यहाँ पे अगर मैचेस खेलते हैं तो उस पर बैटिंग करना इवन फ्लैट पिच भी उतना आसान नहीं है. स्पिनर को बाउंस ज़्यादा मिलता है, बाइट ज़्यादा मिलती है, फास्ट बॉलर का गेम But ऑफ द Misbah, सेम. shouldn't it be internationally standardized? एक बॉल for the entire game of cricket. I mean, कलर जो भी हो, but a standard ball. ओडीआई में तो White वाइट ball- बॉल कोकोबरा ही है. वाइट Right. बॉल क्रिकेट में यही रहता है, कोकोबोरा रहता है. बट टेस्ट रेड क्रिकेट बॉल के में अंदर जो है वो चेंज हो जाता ऑप्शन होते हैं. बायलैटरल सीरीज में आप होम नेशन के पास ये चांस होता है Right. कि वो अपनी बॉल यूज So, करे. जो जिन्होंने भी ये सवाल पूछा था, I hope कि आपको कुछ इसका मिल गया हो आंसर. We'll try to dig into more as we go along in this World है. Cup. आईसीसी का लंबा कॉन्ट्रैक्ट है कोकोबोरा से, जो That's what I'm saying. We need to dig in more and we need to find out किसका क्या वजह है. अली अम्मार का सवाल है, वसीम अकरम आपसे ये सवाल उन्होंने किया है कि why has the art of reverse swing virtually disappeared in ODIs? I know there are 2 new balls, but you used to have 2 new balls as well. It's quite disheartening to see that even some of Pakistani ballers don't reverse it anymore. Ask the pavilion. Waseem, this is for you. बिल्कुल ठीक कहा आपने अली. हम जब भी ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड जाते थे, इवन अर्ली मिड 80s की बात कर रहा हूँ, पहले टूर पे मैं गया 85 पे, 2 नए गेंद लगते थे वनडेज में. और ऑस्ट्रेलिया में भी जब मैं 85 में मिनी वर्ल्ड कप के लिए गया, 2 नए गेंद थे. वो बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस था मेरे लिए. और फिर उसके बाद जब भी हम उधर गए 2 नए गेंद लगे और करते. आई सपोज अब कंसंट्रेशन इतनी इनके पास रही नहीं. मे बी रिवर्स 25-20 ओवर बाद ईच साइड के बाद थोड़ा बहुत तो होना चाहिए. थोड़ा बहुत से मीन आई एम नॉट सेइंग कि बूमरैंग, आई एम सेइंग कि इतना होना चाहिए कि फास्ट बॉलर को कंट्रोल आ जाए कि वो अंदर लाएगा तो वो अंदर ही आएगा. तो जब वो ऐसा कंट्रोल, मुझे जब पता लग जाता था कि ये बॉल ने अंदर आना है हल्का सा, तो मेरा यॉर्कर 90% उस जगह पे पड़ता था. सो ये चीज़ें प्रेजेंस ऑफ माइंड है. अब फॉर इंस्टेंस हल्का सा ड्यू पड़ा हुआ है. अब मेरी जॉब नहीं है एज अ कैप्टन. पहले ये टीम मीटिंग में डिसाइड होता है कि भी 1 बाउंस थ्रो ना करना अनलेस इज अ रन आउट चांस. कोशिश करो कि थ्रो हाथ में आए ताकि बॉल ड्राई रहे. मगर अब ये चीज़ें निकल गई हुई हैं. अब वो पहली बॉल ही जाती है. तो हमारे दौर में था, आई एम नॉट कंपेयरिंग एरा टू एरा, पहली आप
फाइन लेग पे खड़ा हूँ मैं, बॉल आई है, मैं कीपर को थ्रो करता था गोली, अब वो थ्रो करते हैं ऐसे करके, 3 ठप्पों में थ्रो पहुंचते। ये पहला गेंद बता रहा हूँ मैच का। सो इससे आपका एक टेम्पो सेट होता है। अब वो आपका फील्डिंग कोच, आपका कप्तान, उन सब ने आपको बताना होता है कि बड़ी दिस इज पार्ट ऑफ द जॉब, कि ऑपोजिशन को पता हो, बैटर्स को, कि यू आर देयर ऑन द फील्ड। अब तुम 3 ठप्पों में थ्रो करोगे पहली गेंद, तो ऑब्वियसली ऑपोजिशन को पता है भी आते बस चिल कर रहे हैं। ये वही थ्रोज हैं जिनकी वजह से इनकी उंगलियों के यह शुरू हुआ हुआ है जो हमें नजर आती हैं। और जनाब कट करी, वो गलत साइड में कट हो गया सारा, नॉट एन इशू। जॉर्ज खान Dakar, I don't know how Khan Dakar, but George Khan Dakar, I hope I'm pronouncing it right. I do apologize if I'm not, but आपके बहुत सारे सवाल आते हैं. However, I'm going to take this question to you, Shoaib Malik. How has the role of spinners evolved in modern cricket? And which spin bowlers do you think will shine in this World Cup? I think we have seen one Santner. His variation is very good. वो ऐसा नहीं है कि हाँ एक आर्म बॉल वो ज़रूर करते हैं, लेकिन कोई नॉट अ बिग टर्नर ऑफ द बॉल। और मुझे लगता है कि रिस्ट स्पिनर जो हैं दे हैव अ वेरी वाइटल रोल इन द वर्ल्ड कप। एक पर्टिकुलर नाम मुझे लगता है कि सेंटनर इज़ द वन जो कंसिस्टेंटली जो है परफॉर्म करेंगे। George Khandakar, इनका ताल्लुक कोलकाता से है, by the way. So this question has come out of Kolkata. Because he's got a lot of questions that he's posted to us that I was just going through. Okay, ये है Yang Goi की तरफ से सवाल है, and this is for all of you. Do you think Pakistani bowlers will struggle like Mark Wood did today in this World Cup? Moin? जी. Let me bring the. Good morning, Moin. Assalamu alaikum. जी दोबारा कीजिएगा जरा प्लीज। उन्होंने सवाल पूछा है कि जिस तरह आज मार्क वुड ने स्ट्रगल किया कि पाकिस्तानी बॉलर्स भी इस तरह स्ट्रगल कर सकते हैं इस वर्ल्ड कप में। अभी हमने बात Yang की Goi. थी, आज बिल्कुल 100% अगर मैच देखा जाए तो न्यूजीलैंड की फेवर में गया, हर चीज़ उनके लिए बेहतर हो रही थी। तो आज जो हमने कमेंट दिए हैं, मे बी कल अगले मैच में न्यूजीलैंड की इतनी कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो हमारे भी कमेंट्स बिल्कुल फकर चेंज हो सकते हैं, सो इट वाज अ गुड लाइक डे फॉर न्यूजीलैंड, बट मार्क वुड एक्सपोज, जैसे शोएब ने भी कहा था कि इंग्लैंड की तमाम बॉलिंग एक्सपोज तो हुई है, इनको रन्स पड़ेंगे जब भी ज़रा सी इधर उधर बॉलिंग होगी ऑफ द ट्रैक, आपको बहुत कंसिस्टेंट होना पड़ेगा विकेटों के बीच में। अगर नहीं होंगे तो हल्का सा जेंटल पुश भी आपको बाउंड्री में कन्वर्ट हो जाएगा आपको बॉल। सो इट्स इम्पॉर्टेंट, वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और जिस तरह हम अगर लेटर ऑन द इनिंग्स थोड़ा सा रिवर्स मिलता है तो वहाँ पे यॉर्कर्स बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी फकर हमारे लिए। पाकिस्तानी बॉलर्स जो हैं वो डिफरेंट टैक्टिक्स के साथ आएंगे। ये टीम प्लान था कि वो उनकी एवरेज स्पीड जो है 148 आ रही थी, तो वो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग से अटैक करेंगे, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स जो हैं वो आई डोंट थिंक वो इस प्लान से जाएंगे। ओवरऑल मलिक, किसी भी टीम की बॉलिंग अटैक के लिए आसान नहीं है। इंडिया में बॉलिंग करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। जब भी हम खेले हैं जिस तरह वहाँ की पे पिचेस और जिस तरह के ग्राउंड्स हैं, ज़रा सा भी इधर उधर हुए तो बाउंड्री ही पड़नी है, बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा क्वेश्चन ये है, मोहम्मद राशिद की तरफ से सवाल आया है कि मेरा क्वेश्चन ये है कि वहाब रियाज आपके शो में क्यों नहीं है? भाई वो हमारे शो में क्यों नहीं है? इसका जवाब कौन देगा? वो आपने नहीं, बताया लेकिन था वो पीटीवी में कर रहा है। आई क्राइटेरिया। थिंक ही इज ऑन पीटीवी, सो आई थिंक ही इज कमिटेड टू पीटीवी पाकिस्तान। नहीं, आपने एक और क्राइटेरिया भी बताया था, फॉर्मर कैप्टन्स बैठे हुए सारे नए टेबल के पहले तो ऊपर, आया उसके बाद मिनिस्टर बन गए। फिर ये तो अच्छी बात है, हमारी दुआएं हमारे दोस्त के लिए है। उस टाइम आपको पता नहीं था कि सज्जाद सियालवी का सवाल है, वसीम भाई, व्हाई स्टेडियम इन अहमदाबाद वाज नॉट फुल? Why you get worried about these little things? सज्जाद सियालवी साहब ने पूछा आपसे। इंडिया नहीं खेल रहा है, ठीक है, अभी स्टार्ट हुआ है, 1,20,000 बंदा वहाँ बैठता है। अगर 40 भी बैठा होगा तो लगेगा नहीं बैठा हुआ है। 30,000 थे, it looked empty, but it's not a big deal. Let's don't waste our energy on unnecessary things, guys. focus on the mojo that we are going to be doing. कराची स्टेडियम होता तो फुल होता। Yeah. ओपनिंग सेरेमनी भी शायद इसी वजह से सुनने में आ रहा है कि शायद जो है I वो नहीं really हो सकती। don't अभी care. तक हमें ओपनिंग सेरेमनी का जो ये मामला है ना, इसका समझ नहीं आया कि don't क्या care. फिर Not important. ओके Really जनाब, not. फजल अकरम का सवाल है मिसबाह उल हक आपसे। फजल अकरम साहब ने सवाल किया, माय क्वेश्चन फॉर मिसबाह भाई, दैट इज ही स्टिल चेयरमैन ऑफ टेक्निकल कमेटी ऑफ पीसीबी व्हाइल जॉइनिंग दिस शो?
पता नहीं, ये तो क्रिकेट बोर्ड से पूछना पड़ेगा। Okay. आपको आपका जवाब मिल गया है। आई होप कि यू फाउंड योर आंसर इन दैट। अच्छा जनाब, आगे चल। दिन के बाद तो नहीं लगता मुझे। हाँ? कल के दिन के बाद तो नहीं लगता मुझे। नहीं, अभी तो कोई ऐसी कोई मसला हुआ है? टेक्निकल कमेटी जी, ऐसा कोई मसला हुआ है? ओके जनाब, सलमान महबूब साहब हैं, सबके लिए उन्होंने सवाल किया है, इज इंडिया प्लानिंग टू बिल्ड और ले फ्लैट विकेट्स फॉर दिस वर्ल्ड कप? शुड द आईसीसी स्टैंडर्डाइज द विकेट्स? इजंट आईसीसी स्टैंडर्डाइजिंग these wickets? हाँ, ये जरा प्लीज सलमान महबूब का सवाल है ये। Camera. Let me explain that to you guys. This is ICC's tournaments. India is hosting it. ICC के क्रिएटर हर पिच पर होगा, हर ग्राउंड पर होगा, विकेट ICC बनवाएगी। और इंडिया की पिचेस ऐसी हैं जैसे हमारी हैं, फ्लैट विकेटें हैं। घास वाली विकेटें क्यों बनाएंगे वो? वनडे क्रिकेट है, जैसी पिचेस वहाँ स्क्वायर पे मिलेगी, स्क्वायर होगा, वैसी पिच वो बना देंगे। बिला भाई तो इतने तक घास रखेंगे नहीं, आई सपोज। सो या आईसीसी क्रिएटर होगा जो पिचेस को देखेगा, ओवरसी करेगा। अच्छा जनाब, सवाल है उसामा आसिफ का, और वो ये आप सबके लिए सवाल है कि क्या पाकिस्तान की टीम जो है, विल पाकिस्तान मिस एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स इन दिस वर्ल्ड कप? So they've mentioned Sarfraz and Imad and so on, but will they miss I'll them? start, then they can follow me. Yeah. अब टीम एक सेलेक्ट हो गई, वर्ल्ड कप शुरू हो गया, अब ये क्वेश्चन पूछने का तुक बनता है। एक्सपीरियंस अब हो ना हो, अब इट्स टू लेट बडी, इट्स टू लेट, देयर इज नो पॉइंट डिस्कसिंग दिस इशू इज अब पाकिस्तान टीम ने कैसे खेलना है। कल एक मैच है, उस पर डिस्कशन हम सुबह करेंगे। लेट्स सपोर्ट द प्लेयर्स वी हैव नाउ। सो एक और चीज भी है, देखें, अच्छी चीज ये है कि जो 1-1.5 साल से कॉम्बिनेशन खेल रहा था, मोर और लेस वही है, तो इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि उनके पास एक्सपोजर भी है, वो कंसिस्टेंटली इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेलते आ रहे हैं, आपस में जेल भी करते हैं, दे वर्क टुगेदर, दे गो टुगेदर। आई थिंक दैट इज ऑल गुड फ्रेंड्स। या एंड कोई टाइम नहीं था शायद यहाँ चेंज करने का। ये भी है, आई कंप्लीटली एग्री विद यू, बट रीबिल्डिंग होती है हमेशा, वो आफ्टर वर्ल्ड कप आके आई सपोज यही क्राइटेरिया यही है ना कि यू हैव टू प्ले बिट ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट। T20 तो आप खेलने जा रहे हैं, इसके फौरन बाद उसके बाद है डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, उसमें आके खेलें, परफॉर्मेंस दें। ये लड़के जो हैं, जो भी अगर फेयर ना तो आ जाएंगे टीम में। देखें, बात वही है कि अब हम बाहर से हमें कई दफ़ा लग रहा होता है कि इसको होना चाहिए था, इसको नहीं होना चाहिए था, वो शायद होता तो बेहतर परफॉर्म करता, बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो टीम मैनेजमेंट देख रही होती है, कप्तान देख रहा होता है, सिलेक्शन कमेटी देख रही, कि कोई बंदा वनडे क्रिकेट खेल भी रहा है जिसका हम नाम ले रहे हैं, 2 साल से खेला नहीं है, हम तो चाह रहे हैं कि वो भी टीम में आ जाए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिलेक्शन कमेटी और उनके लिए एक वनडे क्रिकेट खेलना आसान काम नहीं है। इट्स अ मिनी टेस्ट मैच, 3.5 घंटे आपने ऑन द फील्ड रहना है और आपने 7-10 ओवर भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक फॉर्मेट अगर आप नहीं खेले तो आपके लिए मुश्किल है। तो मेरे ख्याल में जैसे कल मैंने बात की, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिन्होंने ये सारी चीज़ें देखनी है, ऑब्वियसली लास्ट कॉल उन्हीं की है। हमें अब टीम को सपोर्ट करना है। अगर हम अपने फुल पोटेंशियल पे खेलेंगे देन वी हैव अ चांस। और ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, सारी टीमों के लिए, every team. We have a team. It's there now. It's in India, and we have to support them no matter what. क्या होगा वर्ल्ड कप के बाद देखेंगे, जीत जाएंगे तो ऑफ कोर्स देयर इज नथिंग, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, बट इफ इट्स अ बैड परफॉर्मेंस एवरीबडी इज गोइंग टू एग्जामिन दैट, इट्स जस्ट द वे। But now whatever team is there, we got to support them, and this team has given us some great memories. I mean, they've given some great performances, they've been to so many finals and semi-finals and so forth and so on, but let's just give, stick with the way the things are. एक चीज़ मैं ऐड करूँगा इसमें, वो बड़ी ज़रूरी जो पाकिस्तान टीम के लिए, कि जितनी जल्दी ये एक्सेस बैगेज जो है ना, ये उतारेंगे ना पीछे, एशिया कप, ये वो जो अब हम हमेशा कम बैक करते हैं। पिछले 2 T20 वर्ल्ड कप्स में भी कोई सिचुएशन ऐसी नहीं थी, तो मेरे ख्याल में कर सकते हैं, बट फर्स्ट मेंटली उनको सोचना है कि कुछ नहीं हुआ, हमने उठना है तो हमने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है, पीछे जो हुआ हो गया। That's how it has got to be. With that, we're going to take a break right here on the Pavilion. Keep watching A Sports, 10 Sports and the AOY's app. When we come back, more of your questions. Don't go away. Keep watching the Pavilion.
Right, welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखरान, आप देख रहे हैं Sports and Sports and the ARY Zap app and our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. We were earlier talking about the game in Ahmedabad today. Defending champions England humbled by New Zealand. New Zealand starting off their campaign in this World Cup with great style. With me in the Pavilion, I've got four fantastic legends. I've got Misbah-ul Haq and Wasim Akram on my right, and I've got Shoaib Malik and Moin Khan on my left. And Ask the Pavilion, आपके सवालात का सिलसिला जो है वो चल रहा है. हसन महमूद का सवाल आया है. हसन महमूद पूछ रहे हैं कि शुड उसामा मीर रिप्लेस शादाब खान इन द प्लेइंग 11 फॉर टुमारोज मैच अगेंस्ट नेदरलैंड्स. इट्स ओपन फॉर ऑल ऑफ यू, प्लीज. ऑल ऑफ यू. मेरा ख्याल है चले मैं आप दे दें, खुदा का आप दे दें, जवाब दे दें. इशारा करे जा रहे हैं आप दे दें. आपको कह रहा हूँ भाई, आप जवाब दे दें. उनको मोइन भाई को लग रहा है इस टाइम पे ना वो घर बैठे होते हैं ना. अच्छा चल जवाब दे. स्टार्ट कर दो. जी सर. मेरा ख्याल है कि पहले मैच में आई डोंट थिंक सो. एक तो पिच की कंडीशंस ऑफ कोर्स बड़ी इंपॉर्टेंट होगी कि अगर सपोर्ट नजर आ रही है स्पिनर की, देन यू ऑलवेज यू कैन प्ले एक्स्ट्रा स्पिनर. उसामा को ला सकते हैं टीम में. शादाब की जगह कह रहे हैं. नहीं, शादाब की जगह तो आई डोंट थिंक सो कि शादाब की जगह नहीं. शादाब की जगह मेरा ख्याल है कि फर्स्ट प्रेफरेंस शादाब की होनी चाहिए. इफ़ ही डजंट परफॉर्म वेल देन डेफिनेटली आपके पास चांस है कि आप लेके आ सकते हैं किसी को. बट इस पर्टिकुलर मैच में नहीं, क्योंकि पहला मैच है. आप फुल स्ट्रेंथ के साथ जाएं जो आप देख रहे हैं इस मैच के. और जैसे मैंने कहा, अगर पिच में थोड़ी सी भी आपको नज़र आ रही है कि आपको एक एक्स्ट्रा स्पिनर चाहिए हो तो आप एक्स्ट्रा स्पिनर खिला सकते हैं. एक अच्छी चीज़ ये भी है, ऐड ऑन करता चलूँ कि रिलेटिवली थोड़ी हल्की टीम से आपका मैच है और शादाब्स बीन स्ट्रगलिंग, तो एक अच्छी हो सकती है ऑप्शन कि आप उसे कॉन्फिडेंस दें इस मैच में. उसे इजी सिचुएशन में जब दो नए बैटर्स बैटिंग कर रहे हैं उससे बॉलिंग करवाएं और कोशिश करें पूरे 10 ओवर्स करवाएं, क्योंकि वो शादाब एक ऐसा क्रिकेटर है, इफ़ ही कम्स बैक इन फॉर्म वो पाकिस्तान टीम के लिए बहुत फ़ायदा कर सकता है. शोएब, आप ही से सवाल करूंगा. हैदर अली बुत्तर ने ये सवाल किया है कि व्हाई इज द आर्ट ऑफ राइट आर्म ऑफ स्पिनर्स डिमिनिशिंग स्पेशली इन पाकिस्तान. उसमें मुझे ये लगता है कि ऑफ स्पिनर अगर ओवरऑल देखा जाए तो वो कम उनका रोल जो है आ रहा है. और इसी तरह आप देखें कि बैटर्स जो हैं वो आउट हो रहे हैं. आज हमने देखा ग्लेन फिलिप्स, वो रेगुलर बॉलर नहीं है, लेकिन बैटर्स भी अगेंस्ट ऑफ स्पिन प्रैक्टिस करना कम कर दिया, राइट हैंडर बैटर्स जो हैं. तो मुझे ये लगता है कि ऑफ स्पिन एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फिंगर स्पिनर उसके पास कंट्रोल ज़्यादा होता है, वो कहीं भी बॉल गिरा सकता है, राइट, एज कम्पेयर टू रिस्ट स्पिनर. जैसे लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर है या राइट आर्म लेग स्पिनर है, उससे ज़्यादा कंट्रोल होता है फिंगर स्पिनर के पास. और ऑफ स्पिन कभी भी आप जो है इसका रोल कम नहीं कर सकते या ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन मुझे ये लगता है कि बहुत सारे जो ऑफ स्पिनर है ना वो बैटिंग की तरफ चले जाते हैं. राइट, अपनी बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन मुझे जो इसकी एक और रीज़न नज़र आती है वो ये है कि पाकिस्तान में स्पेशली जो पिचेस हैं, जो हम पिछले कुछ अरसे से मुराद के तकरीबन 7-8 साल से जिस किस्म की पिचेस पे हम खेल रहे हैं, वहाँ पे फिंगर स्पिनर के लिए कुछ नहीं होता. कोई ज़्यादा कोई आपको सपोर्ट नहीं है उस पर. नॉर्मली फास्ट बॉलर्स हैं, ग्रीन पिचेस पे खेलते हैं. वनडे में ऑफ स्पिनर विदाउट दूसरा बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए सर्वाइव. ज़्यादातर हम लेफ्ट आर्म स्पिनर्स पे या लेग स्पिनर्स पे जाते हैं, तो ओवरऑल चांस ही नहीं मिलता. अभी अब एक हमारे पास ऑफ स्पिनर आया था, तो वो भी अभी कहीं पे भी उसको उस तरीके से चांस ही नहीं मिल रहा है. रीज़न यही है, पाकिस्तान ने जब टेस्ट मैचेस में भी यहाँ पे फिंगर स्पिनर ऑफ स्पिनर खिलाया, देयर वाज नो हेल्प, विकेट्स नहीं मिले अनलेस के एक्सीडेंट. 400 प्लस उसकी वो तो नहीं दूसरा करता. और दूसरा जो है ना, दूसरा अब वो उस तरह इफेक्टिव नहीं रहेगा. वो इसलिए नहीं रहेगा कि अब आपका वो जो आर्म एक्सटेंशन है आपकी हॉरिजॉन्टल से लेके जब आप डिलीवर करते हैं वो 15 डिग्री है, तो वो फोर्स कम हो जाती है उतनी डिग्री. मेरे कहने का मकसद कन्वेंशनल ऑफ स्पिनर जो है, मेरे कहने का मकसद यही है कि यहाँ पे आपको क्योंकि डोमेस्टिक में नीचे हेल्प नहीं मिलती, इनकरेजमेंट नहीं है फॉर एन ऑफ स्पिनर. ऑस्ट्रेलिया में जब आप खेलते हैं रफ मिलता है आपको एटलीस्ट, और पाकिस्तान की पिचेस ऐसी हैं, यकीन करें कि हम जितनी भी क्रिकेट खेले हैं 5वें दिन भी रफ शफ कुछ नहीं होता, स्पिन नहीं होता. तो हमारी वो ट्रेडिशन जो बाहर से गेम करने की वो है ही नहीं उस तरीके से. तो यही वजह है कोई करना नहीं चाहता. और ऑफ स्पिन अगर हैं तो उस पर ज़्यादा काम करें.
ताकि हाँ, उसमें develop भी आपको करना चाहिए सक्सेस आपको, बिल्कुल। बिल्कुल I think मेहनत करें तो कुछ भी आप अचीव कर सकते बिल्कुल एंड आई होप विद दैट यू गॉट द आंसर टू योर क्वेश्चन एंड ये आज से पवेलियन का सिलसिला हमारा चलता रहेगा रोजाना हम जब आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और अब बात कर लेते हैं कल लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट वी हैव इन स्टोर फॉर यू टुमारो इट इज पाकिस्तान स्टार्टिंग देयर कैंपेन इन दिस 2023 वर्ल्ड कप हैदराबाद से लाइव आपकी खिदमत में जो मैच है वो पेश होगा 1:30 बजे हम लोग कल आपकी खिदमत में पेश हो जाएंगे 11:30 बजे थोड़ा पहले ताकि हम ज़्यादा बात कर सकें पाकिस्तान की हवाले से इट्स पाकिस्तान वर्सेस नेदरलैंड्स टुमारो and this should be a good game for Pakistan to start and build momentum and get their confidence right. Your thoughts for Team Pakistan. What would be the message that you'd like to send out to Team Pakistan right now, Wasim? I'll just go out, enjoy yourself. First day of the tournament, first game of the tournament. The whole country is behind you, and just try your best. Yeah. That's the best you can do. Absolutely, Moin. वेल ऑफ कोर्स बिल्कुल सही बात बोली है और यही चीज़ सीखी है हमने वसीम भाई की कैप्टनसी में हमेशा कि जब भी आप जा रहे हो खेलने आपको एंजॉय करना उस मोमेंट को बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपॉर्चुनिटी ये है कि आपको एक ऐसी ओपोनेंट मिली है पहले मैच में जो कंपैरेटिवली इतनी स्ट्रांग नहीं है तो आपके पास पूरा चांस है, तो इस अपॉर्चुनिटी को ज़ाया ना करें, यहाँ से रिदम में आए और जो आने वाले मैचेस हैं जिसमें आपकी जो ओपोनेंट्स हैं वो थोड़ी सी आपके लिए टफ टाइम दे सकती है, आपको प्रिपरेशन करने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा इसमें। Yeah, it's a good way to Misbah. What would you be saying to the team right now? Obviously that's very important. मैं हमेशा कहता हूँ प्रैक्टिस मैचेस इंपॉर्टेंट थे मीटिंग कर लेनी बट ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच है टू गेट बैक, जो आपका सही ट्रैक पे आने के लिए, जैसे मोइन भाई ने बात की कि अगर जो भी आपके आउट ऑफ फॉर्म है उनको कॉन्फिडेंस में वापस लाने के लिए आगे टूर्नामेंट के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट गेम है। बट एट द सेम टाइम अपने आप को अंडर प्रेशर ना इस वजह से कर लें, जैसे वसीम भाई ने बात की ना कि एंजॉय करना है, आपने जाना है, कोशिश करना है, एग्जीक्यूशन पे जोर दें एंड देन रिजल्ट्स विल बेसिकली टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। अदरवाइज कई दफ़ा ऐसी है पोजीशन के खिलाफ जब ज़्यादा प्रेशर अपने आप पे डाल लेते हैं कि अच्छा करना है, जीतना है, तो जो आपकी पोटेंशियल होता है आप वो भी नहीं खेल पाते हैं, डिमिनिश हो जाते हैं आपके एफर्ट सारे। शोएब, योर थॉट्स फॉर टीम पाकिस्तान टुनाइट? बिल्कुल छोटी सी सजेशन और वो ये है कि नसीम शाह नहीं है वहाँ पे, उनसे बहुत फ़र्क पड़ता था। तो अगर आप क्लोज मैचेस खेलने जाएंगे बड़ी टीम्स के अगेंस्ट तो आप पहले से वो जो 15, 20, 25 रन वाला जो एक मार्जिन है उसको इस मैच से जो है कवर करें और पॉजिटिव क्रिकेट खेलें, गिव आउट देयर, गिव योर बेस्ट शॉट। दुआएं सारी टीम के साथ हैं, सब प्लेयर्स के साथ हैं। ऑल द बेस्ट। Yeah, all the best to Team Pakistan. Well, all Pakistani fans around the world, all of us here in the Pavilion studio and everybody across the world, Pakistani fans everywhere are hoping for the best, wishing the team all the best. We are behind you and we are very, very hopeful and praying that you come back home with a spectacular performance behind you. It's a wide open cup. There are a lot of teams out there. It'll be a lot of competition. All we want is an exceptionally great fight on every outing that you do. With that, the pavilion comes to an end tonight. Thank you, gentlemen. Thank you, Shoaib. Thank you, Moin. Thank you, Misbah. And thank you, Wasim. We will see you here tomorrow morning at 11:30 Pakistan Standard Time and bring you the coverage of the ICC World Cup 2023. So stay with us on A Sports, 10 Sports and the ARY Zap app. मैं हूं फखर आलम, ये था पवेलियन। मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। शब बखैर।